Good morning everyone. My name is Swapnil Mishra. I am an assistant professor in Axis Colleges Kanpur. Today I am here to present a PPT on Introduction of Microbiology. Here is the first slide, the scope of microbiology. माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? माइक्रोबायोलॉजी वर्ड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो, बायो एंड लॉजी. माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म जीव या ऐसा जीव जिसे कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. बायो का मतलब है लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लॉजी डिफाइंस अ स्टडी ऑफ समथिंग और सम टॉपिक. सो माइक्रोबायोलॉजी की डिफिनेशन हुई द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स too small to be seen without magnification. Microorganisms or microbes, these are microscopic organisms. क्योंकि हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. इसीलिए हम इन्हें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. Commonly called germs, viruses, agents, but not all cause disease and many more are useful or essential for human life. अगर हम पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं और नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो किसी भी तरह का डिसीज कॉज नहीं करते हैं. देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं या एसेंशियल होते हैं. दिस इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एज यू कैन सी हेयर, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन स्लाइड. माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप्स बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ. These all are microscopic view of microorganisms. The next slide. Types of microorganisms. Microbial diversity is truly staggering, yet all these microbes can be grouped into 5 major types: viruses, bacteria, archaea, fungi and protozoa. These are 5 major types of microorganisms. As we can move further, फंजाई को अगर हम elaborate करें, फंजाई is a eukaryotic microorganism, have membrane bound nucleus, obtain food from organisms. Obtain food from organisms, इसका मतलब क्या है? There are some saprophytic और parasitic fungi जो कि अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे प्लांट या दूसरे एनिमल या ह्यूमन बीइंग से लेते हैं. उन्हें हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक. ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. possess cell walls composed of molds, multicellular, have hyphae. hyphae एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ये एक जाल जैसा बना लेता है. यही जाल हमारा फंजाई का कॉम्पोजिशन करता है. This is called hyphae or hyphae structure. Yeast are unicellular, reproduce asexually by budding. Some produce sexual spores. Molds are also fungi. Yeasts are also in fungi, but molds are multicellular. Yeasts are unicellular. Molds have hyphae, reproduce by sexual and asexual spores. Yeast are reproduce asexually by budding. Some produce sexual spores. This is the difference between molds and yeast. Here you can see hyphae structure of fungi. These are spores and these are hyphae. Budding cells, when they are dividing asexually, the budding arise. In sexual reproduction, there is no budding. Protozoa. Protozoa are single-celled eukaryotes similar to animals in nutrient needs and cellular structure.
live freely in water, some live in animal host. Again, which are live in animal host are parasites. Which protozoans live in animal host or plant host are called as parasites. These reproduce asexual and by sexual reproduction. Most are capable of locomotion by pseudopodia. Pseudopodia are cell extensions that flow in direction of travel. Cilia. Now, numerous short hair-like protrusions that propel organisms through environment. Flagella, extension of a cell that are fewer, longer and more whip-like cilia. This is the structure of protozoa. Examples are amoeba, proteus, Pseudomonas. These are the examples of protozoans and these are the structure of protozoans. Again, this is the microscopic view of protozoans. We can't see microorganism from our eyes. Algae. A third type of microorganism are algae. Algae are unicellular, multicellular. It can be unicellular or multicellular. They can make their food by photosynthesis. They are not dependent for their food in any organism or host or plant. They can prepare their own food by photosynthesis. Simple reproductive structures. These are simple reproductive structures categorized on the basis of pigmentation, storage, products and composition of cell wall. ये एक तरह का काई होती है. हमने बहुत बार देखा होगा किसी भी पॉन्ड में या रिवर के आसपास हमें इस तरह की काई नज़र आती है. अगर कहीं पे पानी काफ़ी दिन तक जमा हो गया है तब भी हमें इस तरह की काई देखने को मिलती है. यही हमारी एल्गी है जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में वाटर में पाई जाती है. ये एल्गी का माइक्रोस्कोपिक व्यू है. दीज फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स. Bacteria and archaea. Bacteria and archaea are the fourth and fifth type of microorganism. These are unicellular and lack nuclei, much smaller than eukaryotes, found everywhere there is sufficient moisture, some food found in extreme environments. See, bacteria are found in everywhere. In water, in air, in food, everywhere bacteria can be found. But the archaea bacteria only found in extreme environments like high temperature, high pH, low temperature, low pH, salinity, high salinity and low salinity as well as. Much smaller than eukaryotes, reproduce asexually. These are two kinds, bacteria and archaea. Bacteria क्या होता है? Cell walls contain peptidoglycan. Some lack cell walls, most do not cause disease and some are beneficial. जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, bacteria can be pathogenic and non-pathogenic. So, which are non-pathogenic and they can be beneficial and essential. Archaea, cell wall composed of polymers other than peptidoglycan. यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में मेन डिफरेंस सेल वॉल की वजह से होता है. आर्की बैक्टीरिया अपने सेल वॉल की वजह से हाई टेम्परेचर, हाई पीएच, लो टेम्परेचर, लो पीएच और हाई सैलिनिटी कंसंट्रेशन पे सरवाइव कर पाते हैं, जबकि बैक्टीरिया आपका हाई सैलिनिटी कंसंट्रेशन या एक्सट्रीम टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर सकता. वायरसेस. द नेक्स्ट टाइप ऑफ microorganisms are viruses. Not independently living cellular organisms, much simpler than cells, basically a small amount of DNA or RNA wrapped in protein and sometimes by a lipid membrane. Viruses में कोई भी सेल नहीं होती है. अभी तक हमने जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, जैसे हमने फंजाई के बारे में पढ़ा, फंजाई आर यूनिसेलुलर and can be multicellular, algae are multicellular,
bacteria are unicellular, but in case of viruses, they do not have any type of cell. They lack cell. They only have a genetic material, either DNA, either RNA. They don't contain both in the same time. The genetic material wrapped in protein, sometimes by a lipid membrane. The protein coat called as capsid. Individuals are called a virus, particle और virion. एक सिंगल वायरस का जो पार्टिकल है उसे हम विरियन बोल सकते हैं. डिपेंड ऑन द इन्फेक्टेड सेल्स मशीनरी टू मल्टीप्लाई एंड डिस्पर्स. आपका वायरस केवल होस्ट सेल के अंदर ही ग्रो कर सकता है, डिवाइड हो सकता है. एक होस्ट सेल के बाहर एक वायरस नॉन लिविंग कंडीशन में रहता है, इसलिए वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसमें वो सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं. दोनों ही कैरेक्टर वायरस में पाए जाते हैं. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. अभी तक मैंने आपको बताया माइक्रोबायोलॉजी के बारे में. माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, एक रिवीजन कर लेते हैं. माइक्रोबायोलॉजी स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिन्हें कि हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हमने. फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, आर्किया एंड वायरसेस. 5 टाइप्स में हमने यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इन सारे वर्ड्स के बारे में पढ़ा. अब जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स का होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है. अगर बात करें फंजाई एंड एल्गी की, फंजाई एंड एल्गी आर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. प्रोकैरियोटिक सेल. एक प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या पाया जाता है. साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लैजिला एंड न्यूक्लियोइड. एक यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या पाया जाता है. साइटोस्केलेटन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस. एज यू कैन सी दीज डायग्राम्स, एक प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, एक ट्रू सेल वॉल भी नहीं पाई जाती है. गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती हैं. ये सारी चीज़ें आपकी यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है. आपका राइबोसोम्स. प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि आपकी यूकैरियोटिक सेल में 70S एंड 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ये डिफरेंस है आपका प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में. आगे चलते हैं. यूकैरियोटिक वर्सेस प्रोकैरियोटिक सेल्स. अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें एक यूकैरियोटिक सेल और एक प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिवीज़न इसी बेस पे किया गया है. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में आते हैं एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके यूकैरियोटिक कैटेगरी में आते हैं. डिफरेंस देख लेते हैं. फर्स्ट इज डिफिनेशन. प्रोकैरियोटिक सेल्स की डिफिनेशन क्या है. Any cell that contains a clearly defined nucleus and membrane bound organelles. एक ऐसी सेल जिसमें डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, उसे हम यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में रखते हैं. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. Any unicellular organism that does not contain a membrane bound nucleus or organelles. ऐसी सेल, ऐसी यूनिसेलुलर सेल जिसमें ना ही ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इस तरह के कोई भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं हैं, उन्हें हम रखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की कैटेगरी में. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स. यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स हैं एनिमल, प्लांट, फंजाई एंड प्रोटिस्ट सेल्स और प्रोटोजोआस. नाउ
What are the examples of prokaryotic cells? Bacteria and archaebacteria or archaea. Nucleus. In eukaryotic cells, present membrane bound or as you can say a true nucleus. But in prokaryotic cell, it is absent or nucleoid region is present or not a true nucleus. सेल साइज. प्रोकैरियोटिक सेल का साइज स्मॉलर होता है यूकैरियोटिक सेल से. यूकैरियोटिक सेल 10 से 100 माइक्रोमीटर्स की होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स 5 माइक्रोमीटर से भी कम होती हैं. नेक्स्ट इज डीएनए रेप्लिकेशन. हाईली रेगुलेटेड विथ सेलेक्टिव ऑरिजिन्स एंड सीक्वेंसेस. In prokaryotic cells, DNA replicates entire genome at once. Organism type. Eukaryotic cells usually are multicellular and prokaryotic cells usually are unicellular like bacteria. Chromosomes. More than one present in eukaryotic cells. One long single loop of DNA and plasmid like this. इस तरह का राउंड प्लाज्मिड या डीएनए लूप प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में. राइबोसोम्स. लार्ज राइबोसोम्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 70 NS and 80S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल में, जो कि लार्ज होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉल 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ग्रोथ रेट जनरेशन टाइम स्लोअर है यूकैरियोटिक सेल में, फास्टर है प्रोकैरियोटिक सेल में. फास्टर कैसे? प्रोकैरियोटिक सेल्स मोस्टली एसेक्सुअली डिवाइड होती हैं, बडिंग में या फिर बाइनरी फिजन में इन केस ऑफ बैक्टीरिया. इस तरह से एक बैक्टीरिया से 2 सेल्स बनती हैं एंड देन डॉटर सेल्स. इस तरह का डिवीजन पाया जाता है आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में. 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से डिवीजन होता जाता है एक प्रोकैरियोटिक सेल में. सो इट इज फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल. ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, absent in prokaryotic cells. Ability to store hereditary information. All eukaryotes have this ability. All prokaryotes have this ability. This is the common in prokaryotic and eukaryotic cell. जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन आपकी मदर सेल्स में प्रेजेंट होगी, वही हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन आपकी डॉटर सेल्स में भी जाएगी. वही जेनेटिक्स, वही जीन्स आपकी डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र होंगे. ये जो एबिलिटी है ये प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाई जाती है. Now the second one is cell wall. In eukaryotic cell, simple, present in plants and fungi, but in prokaryotic cell, it is complex, present in all prokaryotes. Okay? Fungi में आपकी cell wall present होती है, but prokaryotes में सारे ही prokaryotes में आपकी cell wall present होती है. Plasma membrane. अच्छा, यहाँ पे सेल वॉल को लेके मैं आपको एक और बात बता दूं. फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि आपकी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन या लिपिड बाइलेयर की बनी होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में ही प्रेजेंट होती है. साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. अभी तक हमने पढ़ा डिफिनीशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी में टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े हमने. प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. क्या हिस्ट्री है माइक्रोबायोलॉजी की? कहाँ से ये स्टार्ट हुआ? पहले के लोगों का ये मानना था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसा कुछ भी नहीं होता है. पहले के लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे बिलीफ नहीं करते थे. उनका ये मानना था कि एक लाइफ अपने आप ही अराइज हो सकती है, जिसे कि हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन.
पर फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये डिस्प्रूव किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसा कुछ भी नहीं होता है। एक लाइफ सिर्फ एक लाइफ से ही अराइज हो सकती है और एयर में ऐसे बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इस तरह से डिस्कवरी हुई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोबायोलॉजी की। ये जो एज है जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी हुई, जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, कुछ डिसीज़ की डिस्कवरी हुई, वैक्सीनेशन की डिस्कवरी हुई, इस पूरी इरा को हम लोग गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या द गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। रेडीज एक्सपेरिमेंट, फ्रांसिस्को रेडी का एक एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। When decaying meat was kept isolated from flies, maggots never developed. Meat exposed to flies was soon infested. As a result, scientists began to doubt Aristotle theory. यहाँ पे रेडी का एक्सपेरिमेंट क्या है? जब उन्होंने एक फ्लास्क में एक मीट का टुकड़ा रखा, एक खराब मीट, उन्होंने इसे अनसील्ड फ्लास्क में रखा। यहाँ पे मैगट्स का जनरेशन हुआ, यहाँ पे फ्लाइज आई, मैगट्स बने। जब उन्होंने अपने मीट के टुकड़े को एक सील्ड फ्लास्क में रखा, वहाँ पे कोई भी मैगट्स जनरेट नहीं हुआ, कोई भी फ्लाइज उस पर नहीं आए। फ्लास्क कवर्ड विद गॉज, यहाँ पे मीट के खराब होने के चांसेस और भी कम हो गए। इस तरह से इन्होंने डिस्प्रूव किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, क्योंकि जब आपका फ्लास्क बंद था वहाँ पे कोई भी लाइफ अराइज नहीं हुई। इससे उन्होंने ये प्रूफ किया कि एक लाइफ सिर्फ दूसरी लाइफ से ही अराइज हो सकती है, ना कि वो स्पॉन्टेनियस जनरेट होती है। पॉस्चर्स एक्सपेरिमेंट, इसी पे ही लुईस पॉस्चर ने एक एक्सपेरिमेंट दिया। लुईस पॉस्चर को हम मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी बोलते हैं। एंशिएंट माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। लुईस पॉस्चर के बारे में जान लेते हैं। लुईस पॉस्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। अगेन ये एक्सपेरिमेंट डिस्प्रूव करता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। When the swan-necked flask remained upright, no microbial growth appeared. When the flask was titled with dust from the bend in the neck seeped back into the flask and made the infusion cloudy with microbes within a day. यहाँ पे एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं, ये लुईस पास्चर है जो कि अपनी लैब में प्रेजेंट है अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ में। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट क्या होता है। सी, ये इस फ्लास्क को हम स्वान नेक्स्ट फ्लास्क बोलते हैं क्योंकि इसका जो माउथ है वो एक स्वान के नेक की तरह डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे हमने एक ब्रॉथ लिया, ब्रॉथ पे हमने हीट दी, ब्रॉथ को बॉईल किया, बॉईल करने से जो स्टीम थी वो फ्लास्क से बाहर चली गई। आज के समय में हम इस टेक्निक को स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टीम स्टेरिलाइजेशन। जब हमने बॉईल किया अपने ब्रॉथ को, स्टीम जनरेट हुई जिससे कि ब्रॉथ एज वेल एज आपकी जो नेक है वो स्टेरिलाइज हो गई। इन्फ्यूजन साइट्स नो माइक्रोब्स अपीयर, हमने इसे कई महीनों तक रखा लेकिन कोई भी लाइफ अपीयर नहीं हुई। सी, एयर मूव एंड आउट ऑफ डस्ट, यहाँ से आपकी जो एयर है वो बाहर निकल गई। अब इस जगह पे आपके ब्रॉथ पे कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है, ना ही एयर यहाँ से अंदर जा सकती है और ना ही यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। जो भी एयर स्टीम जनरेट हुई वो सारी स्टीम आपकी बाहर निकल चुकी है। इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। आफ्टर फ्यू मंथ्स हमने देखा इन्फ्यूजन रिमेन्स स्टेराइल इनडेफिनेटली, वैसे का वैसा ही है हमारा ब्रॉथ, ब्रॉथ में कोई चेंजेस नहीं हुए, कोई लाइफ अराइज नहीं हुई, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ग्रो नहीं किया। डस्ट फ्रॉम एयर सेटल्ड इन बेंड, ये देखिए जो भी डस्ट पार्टिकल, जो भी एयर अंदर गई वो हमारे
फ्लास्क में सेटल हो गई। इसीलिए उन्होंने चूज किया था स्वान नेक्ड फ्लास्क, ताकि जो भी एयर अंदर जाए वो डस्ट पार्टिकल बाहर ही सेटल हो जाए। नेक्स्ट क्या हुआ इसी में, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में स्टेराइल इन्फ्यूजन साइट्स इन फ्लास्क, इसे हमने बेंड किया। फ्लास्क इज टिल्टेड सो स्टेराइल इन्फ्यूजन कम्स इनटू कांटेक्ट विथ डस्ट। जैसे ही हमने इसको बेंड किया, जो हमारा स्टेराइल इन्फ्यूजन था, स्टेराइल ब्रॉथ था, वो डस्ट के कांटेक्ट में आ गया या एयर के कांटेक्ट में आ गया, जिसमें कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से ही प्रेजेंट थे। जैसे ही ये ऐसा हुआ, माइक्रोब्स अपीयर होने शुरू हो गए इन्फ्यूजन में या ब्रॉथ में। तो इस एक्सपेरिमेंट से लुईस पॉस्चर ने ये प्रूव किया कि लाइफ सिर्फ एक लाइफ से ही अराइज हो सकती है, ना कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन से। जितने भी लोगों का ये बिलीफ था कि लाइफ विदाउट एनी लाइफ अराइज हो सकती है, उन लोगों को इसके बाद एक आंसर मिला। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता। गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में आगे पॉस्चर डेवलप्ड जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, रॉबर्ट कोच स्टडीड कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिसीज, एंथ्रेक्स एग्जामिन्ड कॉलोनीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज का मतलब ये है कि एक डिसीज किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म से ही हो सकता है, ना कि किसी और रीजन की वजह से। दिस इज द मेन ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। Some industrial uses of microbes: cheese, alcoholic beverage, soy sauce, vinegar, yogurt, sour cream, artificial sweetener, bread. अब जब कोई आपसे पूछे कि माइक्रोबायोलॉजी का क्या यूज़ है, आप उसे ये टेबल या ये चार्ट दिखा सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी अगर मैं कहूँ तो बहुत ही सारी चीज़ों को बनाने में यूज़ होती है। चीज़, कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है चीज़ बनाने के लिए? फ्लेवरिंग एंड राइपनिंग प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई, फ्लेवर्स डिपेंडेंट ऑन सोर्स ऑफ मिल्क एंड टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एल्कोहलिक बेवरेजेस, alcohol produced by bacteria and yeast by fermentation of sugars in fruit juice or grain. Soy sauce produced by fungal fermentation or soya beans. Vinegar produced by bacterial fermentation of sugar. Yogurt produced by bacteria growing in skim milk. Sour cream produced by bacteria growing in cream. Artificial sweetener, amino acid synthesized by bacteria from sugar. And bread are mostly used in our lives. Rising of dough produced by action of yeast. Sourdough results from bacteria produced acids. These are the uses of microorganism in production of foods. Some industrial uses of microorganisms rather than food: antibiotics, human growth hormone, laundry enzymes, vitamins, diatomaceous earth used in polishes and buffing compounds, pest control chemicals and drain opener. Antibiotics produced by bacteria and fungi. Human growth hormones, human insulin produced by genetically engineered bacteria. Laundry enzymes isolated from bacteria. Vitamins also isolated from bacteria. Diatomaceous earth composed of cell walls of microscopic algae. Pest control chemicals, insect pests killed or inhibited by bacterial pathogens. Drain opener, protein digesting and fat digesting enzymes producing by bacteria. Some notable scientists of the golden age of microbiology and the agents of disease they discovered. जैसा कि मैंने आपको बताया, गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसी डिस्कवरीज की जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के लिए एक हिस्ट्री लिखी,
जिनका यूज़ हम आज भी करते हैं, जिन डिसीज़ की स्टडीज़ हम आज भी यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप, जो कि आज की बेसिक नीड है इन फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसकी डिस्कवरी भी गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हुई थी। साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच 1876 एंथ्रेक्स डिसीज़ को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स डिसीज़ बैसिलस एंथ्रासिस, बैसिलस एंथ्रासिस एक बैक्टीरिया है जो एंथ्रेक्स डिसीज़ कॉज करता है और डिस्कवरी करी गई थी रॉबर्ट कोच के द्वारा 1876 में। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में बता देती हूँ, जैसे कि एक रॉबर्ट कोच की डिस्कवरी एंथ्रेक्स डिसीज़ को लेके, एल्बर्ट नाइजर गोनेरिया, नाइजीरिया गोनेरी बैक्टीरियम नेम, चार्ल्स लेवरन मलेरिया, चार्ल्स लेवरन ने मलेरिया की खोज की थी 1880 में। इसका कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम स्पीशीज। प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोआ, इज ऑल्सो एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगेन रॉबर्ट कोच ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कार्ल एल्बर्ट टाइफॉइड फीवर, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम। थियोडोर एशरिच ट्रैवलर्स डायरिया ब्लैडर इन्फेक्शन, एस्चेरिचिया कोलाई और ई कोलाई। एल्बर्ट फ्रैंकेल न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। डेविड ब्रूस अंडुलेंट फीवर, ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेला मेलिटेंसिस इज अ बैक्टीरिया। एंटोन विशेलबॉम मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, नाइजीरिया मेनिंजाइटिडिस बैक्टीरियम। गार्टनर साल्मोनेलोसिस फ्रॉम फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग, साल्मोनेला स्पीशीज बैक्टीरियम। शिबाशबुरो कितासातो टिटेनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरियम। दमित्री इवानोवस्की एंड मार्टिनेस विजरिंग 1892 में इन्होंने टोबैको मोज़ेक डिसीज़ की खोज की, जो कि होता है टोबैको मोज़ेक वायरस या टोबैको मोज़ेक वायरस से। विलियम वेल्च एंड जॉर्ज न्यूटेल गैस गैंग्रीन, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस बैक्टीरियम। एलेक्जेंडर यर्सिन एंड शिबास्टालबुरो कितासाटो बुबोनिक प्लेग, यर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरियम। कियोशी शिगा सिजेलोसिस, a type of severe diarrhea, Shigella dysentery bacterium. Walter Reed yellow fever, flavivirus yellow fever virus. Robert Ford and Joseph Newton African sleeping sickness, Trypanosoma brucei gambiensis protozoa। अब आपसे कोई अगर पूछे जो कॉमन डिसीजेज हैं, जैसे कि आपका टीबी, कॉलरा, न्यूमोनिया, मलेरिया, गोनेरिया, ये हमें आसपास सुनने को मिलते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंजाई से फैलते हैं और कौन से साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। द गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में नेक्स्ट रॉबर्ट कोच 1843 से 1910 तक इनका एक समय रहा। Using criteria developed by his teacher Jacob Henle in 1809 to 1895, established the relationship between Bacillus anthracis and anthrax। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स डिसीज़ दी थी जिसका पॉजिटिव एजेंट है Bacillus anthracis। His criteria became known as Koch's postulates and are still used to establish the link between a particular microorganisms and a particular disease. Koch's postulates 1884. The causative etiological agent must be present in all affected organisms but absent in healthy individuals. The agent must be capable of being isolated and cultured in pure form. When the cultured agent is introduced to a healthy organisms, the same disease must occur. The same causative agent must be isolated again from the affected host. Koch postulates
कोच पोस्टुलेट्स रॉबर्ट कोच ने दिए थे 1884 में। कोच पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? 4 रूल्स हैं कोच पोस्टुलेट्स के। पहला रूल ये है, जो आपका कॉजेटिव एजेंट है, जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, आइदर इट इज़ वायरस, आइदर इट इज़ बैक्टीरिया, आइदर इट इज़ प्रोटोजोआ, आइदर इट इज़ फंजाई, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपका अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए, ना कि एक हेल्दी पर्सन में। अगर मुझे कोई डिसीज़ है तो मेरी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मेरे डिसीज़ का पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन एक हेल्दी पर्सन जिसे वो डिसीज़ नहीं है उसमें वो पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट रूल है कोच पोस्टुलेट्स का। सेकंड, जो भी पॉजिटिव एजेंट है वो आपकी जिस भी पर्सन को डिसीज़ है या जिस भी एनिमल को या एनीबॉडी जिसे भी वो डिसीज़ है उससे आपका पॉजिटिव एजेंट कल्चर किया जाना चाहिए। कल्चर का मतलब क्या होता है? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ब्लड से या प्लाज्मा से निकालकर लैब में जब हम उसे ग्रो कराते हैं, एक प्योर फॉर्म में लेकर आते हैं, उसे कल्चरिंग बोलते हैं। तो जो भी बैक्टीरिया या जो भी पॉजिटिव एजेंट, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो एक पर्सन जिसे कि डिसीज़ है उसके ब्लड या प्लाज्मा से आइसोलेट करके लैब में कल्चर होना चाहिए, एक प्योर फॉर्म में हमें मिलना चाहिए। ये सेकेंड कोच पोस्टुलेट है। व्हेन द कल्चर्ड एजेंट इज इंट्रोड्यूस्ड टू अ हेल्दी ऑर्गेनिज्म द सेम डिसीज मस्ट अकर। जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी हेल्दी पर्सन में इंट्रोड्यूस करवाया जाए या किसी हेल्दी एनिमल में इंट्रोड्यूस कराया जाए, वही सेम डिसीज़ होना चाहिए। अगर मुझे कॉलेरा है, मुझसे कॉलेरा का पॉजिटिव एजेंट अगर प्योर कल्चर किया गया और वही पॉजिटिव एजेंट किसी हेल्दी पर्सन में इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो उसे भी कॉलेरा के सिम्टम्स मिलने चाहिए या कॉलेरा डिसीज़ होनी चाहिए। फोर्थ कोच पोस्टुलेट, द सेम पॉजिटिव एजेंट मस्ट बी आइसोलेटेड अगेन फ्रॉम द अफेक्टेड होस्ट। जब किसी हेल्दी पर्सन में हमने वो पॉजिटिव एजेंट इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद उसी प्योर फॉर्म में हमें अपना पॉजिटिव एजेंट मिलना चाहिए। समझिए, फर्स्ट स्टेप क्या है? पॉजिटिव एजेंट सिर्फ उसी होस्ट में प्रेजेंट होगा जिससे कि डिसीज़ है, उसी पर्सन में प्रेजेंट होगा, हेल्दी पर्सन में प्रेजेंट नहीं होगा। सेकंड, जिस पर्सन को डिसीज़ है उससे हम पॉजिटिव एजेंट को आइसोलेट कर सकते हैं इन प्योर फॉर्म इन आवर लैब्स। थर्ड, जब भी आप उस प्योर कल्चर को जो आपने आइसोलेट किया है एक डिसीज्ड पर्सन से, आप एक हेल्दी पर्सन में इंट्रोड्यूस कराते हैं, सेम सिम्टम्स ऑफ डिसीज़ आपको मिलने चाहिए। फोर्थ स्टेप, जिस हेल्दी पर्सन में आपने वो इंट्रोड्यूस कराया था पॉजिटिव एजेंट, उसे अब वो डिसीज़ हो गया है, उसके ब्लड से या प्लाज्मा से आप सेम पॉजिटिव एजेंट को प्योर कल्चर कर सकते हैं। ये 4 कोच पोस्टुलेट्स हैं। फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की क्या फील्ड्स हैं? हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने के बाद, या हम माइक्रोबायोलॉजी को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के डिसिप्लिन्स क्या क्या हैं? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है सीरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, एटियोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल, कीमोथेरेपी। सीरोलॉजी क्या है? एंटीबॉडीज इन ब्लड सीरम पर्टिकुलरली एज एन इंडिकेटर ऑफ इन्फेक्शन। इम्यूनोलॉजी क्या है? बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीजेस। एपिडेमियोलॉजी, frequency distribution and spread of disease. Etiology, causes of disease. Infection control, hygiene in healthcare settings and control of nosocomial infection. Chemotherapy, development and use of drugs in treat infectious diseases. Applied environmental microbiology, bioremediation. Bioremediation, use of microbes to remove pollutants. Public health microbiology, sewage treatment, water purification and control of insects that spread diseases. Agriculture microbiology, use of microbes to control insect and pests.
industrial microbiology or biotechnology, food and beverage technology, reduction or elimination of harmful microbes in food and drinks, pharmaceutical microbiology, manufacturing of vaccine and antibiotics, recombinant DNA technology, alteration of microbial genes, synthesize useful products. These are the fields of microbiology. Thank you so much.